Hi, I wanted to explain few things. That exalted Jupiter is not about money, exalted Jupiter or Venus or Mercury, whatever. Not about Mercury, but especially about Jupiter. It is not about money or property or how much things you have. Means materialistic things you have. It is about your happiness and satisfaction. Your happiness and satisfaction does not depend on how much you have. There are people who creep about things, who complains about things. They have everything. Like I can give example, people who inherited property of their parents, people who inherited gold from their parents, who is in good job, good spouse, good kids, everything is good. But they are unhappy if one thing is troublesome. So that is debilitated planet. When you have debilitated planet, especially about Jupiter and Venus, you are unhappy even about a very small thing. If you don't get a small thing or if you have only one trouble. If you have exalted planet, especially if you have exalted Jupiter, you are happy with whatever little things you have. Exalted Jupiter is not after money, ever. Exalted Jupiter is never after money, never after property. They are after happiness. Example about Nakshatra I am giving. So, debilitated planet in debilitated Jupiter in Dhanishta. They are very good about money. They will inherit good. They will earn good. They are really good about money. They are good about dance, sports, music or instrument, any kind of sports and music kind of thing. And they do earn money, respect, everything from that. Up after Dhanishta, in Shravana, if Jupiter is in Shravana, they are good psychiatrists, psychologists. They do listen to people and if possible, they give some suggestions also. And if it is in Uttarashada, these people are really famous and successful. If you think that only the people who deserve success, they get the success, that is extremely wrong. Always take example of Sri Ramchandra, Jesus Christ and all. One was Revati moon. Another was Punarvasu moon, Cancer moon in ascendant and Cancer Jupiter. And they suffered most. Jesus Christ, Sri Ramchandra, ये जितना सफ़र किए हैं, इतना सफ़र करते हुए किसी को देखे हो? इसीलिए जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ अच्छा होता है. ये बकवास बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो. I have seen thousands of horoscope. अच्छा horoscope होता ही नहीं है. There are very rare good horoscopes. People who are good people are very rare. But अच्छा पैसा कमाने वाले, अच्छा प्रॉपर्टी रहने वाला, अच्छा ornament and gold and expensive TV फ्रिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे रहने वाले लोगों का नंबर इंक्रीज ही हो रहा है. बिकॉज पीपल आर आफ्टर दोज थिंग्स. अचीव करने के लिए कोई भी रास्ता ले लेंगे. सो गुड पीपल, नंबर ऑफ गुड पीपल आर वेरी लेस. इतने हॉरोस्कोप्स देखे हैं बट एक्साल्टेड प्लैनेट वाले हॉरोस्कोप्स कम होते हैं. गुड प्लैनेट्स, इफ समवन्स जुपिटर इज इन पुनर्वसु, राम के बारे में सोचो. श्री रामचंद्र वॉज हैविंग पुनर्वसु ascendant, पुनर्वसु जुपिटर एंड पुनर्वसु मून. एक्साल्टेड जुपिटर विथ स्वखेत्री मून इन ascendant, सेम नक्षत्र में है. सो फॉर कैंसर, जुपिटर इज 6th लॉर्ड एज वेल एज 9th लॉर्ड. ओके, ही वॉज लकी कि बिना ओनली एक तीर और धनुष के साथ, बिना अस्त्र के साथ जंगल में रह के कितना 14 साल वो जिंदा वापस आए. ही वॉज लकी एंड he won the heart of every citizens. He was lucky about that. But 6th Lord Jupiter is exalted, means उनके जो दुश्मन हैं, they were very powerful. Okay? So एक राजकुमार के बारे में अगर आप सोचोगे क्या होना चाहिए था, उनको तो राजा बनना ही चाहिए था. 14 साल वो क्यों रहे? एक्साल्टेड जुपिटर का ऐसा होता है. एक्साल्टेड जुपिटर लोगों के साथ ऐसा होता है, बट दे आर हैप्पी.
कि ओके मेरे पापा मेरे पिताजी जो हैं वो बात कह कि को ये बोले हैं कि ठीक है तुम जो मांगोगे दे दूंगी, तो मेरे पापा जो भी बोले हैं उनका बात सच प्रूफ करने के लिए विदाउट एनी फॉल्ट, ये तो उनके पापा की गलती है जिनके 3 वाइफ थे, दशरथ के 3 वाइफ थे, तो खराब तो दशरथ हुए ना। श्री राम के तो 3 वाइफ नहीं थे, ही वॉज ओनली इन 1 वुमन। पूरा जिंदगी पूरे लाइफ वो सिर्फ एक औरत के साथ गुजारे। कहाँ? जिंदगी के आधा तो जंगल में गुजर गया। दैट इज एक्साल्टेड जुपिटर। एक राजकुमार जंगल में एक ही औरत को प्यार करते हुए, उस जमाने में जब हर राजा के बहुत सारे वाइफ हो सकते थे। दैट इज एक्साल्टेड जुपिटर। व्हेन दुनिया में शूर्पणखा जैसे बहुत लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी आपको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी और औरत में। आपको ना पैसे में इंटरेस्ट है, ना आपको थ्रोन में इंटरेस्ट है, ना आपको किसी और वाइफ में इंटरेस्ट है, किसी और औरत में इंटरेस्ट है। आप एक सीता में ही खुश हो। दैट इज एक्साल्टेड जुपिटर। सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। आपके पास कुछ नहीं है, यू सैक्रिफाइस एवरीथिंग बट यू आर हैप्पी। डेबिलिटेटेड जुपिटर हैप्पी नहीं रह सकते हैं। उनको प्रॉपर्टी भी मिल जाए, उनको सैलरी भी अच्छा मिले। आई हैव सीन डेबिलिटेटेड जुपिटर विथ ऑल डेबिलिटेटेड जुपिटर आई हैव सीन, दे हैव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। कम प्रॉपर्टी हो, वो अगर हाफ प्रॉपर्टी की जगह अगर 1/4 प्रॉपर्टी अगर मिला है, उसमें भी उस पूरा जिंदगी एवरी डे दे आर अनहैप्पी अबाउट इट, कि मुझे इतना लड़के लेना पड़ा फिर भी 1/4 मिला, फिर भी 1/10 मिला, वॉट एवर। आई डू रिमेंबर माई फादर बिकॉज ही हैज़ गॉट ओनली 1/10 प्रॉपर्टी। ओके, जिससे कि वो हमेशा एवरी डे क्रीप करते थे, दुखी रहते थे। गुड जुपिटर का मतलब क्या? मुझे देखिए, पूरा गोल्ड छोड़ के आए, पूरा घर छोड़ के आए थे बहन के लिए, कि चलो वो शादीशुदा नहीं है, वो जॉब नहीं करती, मैं जॉब कर लूंगी, मैं घर का काम कर लूंगी, जॉब कर लूंगी, मुझे नहीं चाहिए। दिस इज गुड जुपिटर। गुड जुपिटर का मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको इंटरेस्ट नहीं है। देयर कंसंट्रेशन इज टुवर्ड्स हैप्पीनेस। दे वॉन्ट रेस्पेक्ट एंड लव। अगर उनको प्यार और इज्जत मिलती है वो उसी से खुश है। ओके, नाउ एक्साल्टेड जुपिटर और वेनस वॉट एवर इन 12th हाउस। 12th house is bed pleasure, okay, and secret relationships and all. If you have exalted Jupiter or Venus in 12th house, क्योंकि exalted Venus जो है वो कालपुरुष कुंडली के लास्ट इसमें है, लास्ट साइन, लास्ट नक्षत्र में है, तो इसीलिए exalted Venus होने से how you are using that, क्योंकि 12th house is about meditation and दान ध्यान भी है, and it is about secret relationship भी। अगर आप गलत करोगे तो आपका बच्चा सफर करेगा, बिकॉज वी नो दैट 1st, 5th एंड 9th हाउस। आप देखोगे जिनके बच्चे बार बार सेपरेशन, डाइवोर्स, बीमार रहना, जॉब चले जाना, ये सब लेके सफर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हिस्ट्री खोजो, उसके बोथ पेरेंट्स, माँ या बाप में से किसी एक जन का कैरेक्टर खराब है, फ्रॉड किए हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के रहते हुए किसी और के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए हैं। ऐसे सब लोगों का, या 2-3 रिलेशनशिप, 2-3 सेक्सुअल रिलेशन से आराम से दे हैव एक्सपीरियंस, ऐसे लोगों का बच्चों का लाइफ अच्छा नहीं होता है। मतलब बच्चे जितना भी अच्छे हो, लेकिन आप देखिएगा उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होते रहता है। तो दिस पीपल, इनका तो गिल्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है, वो गलत काम आराम से करते जाएंगे। जनरली एक्साल्टेड जुपिटर, एक्साल्टेड वेनस, ये सब जो है आपको गलत काम नहीं करने देता है, इफ इट इज नॉट इन 12th साइन। एक्साल्टेड जुपिटर का कैरेक्टर खराब कभी नहीं होता है। इफ इट इज इन 12th साइन देन इट इज डिफरेंट, बिकॉज जुपिटर इज मैरिड मैन ऑल्सो। इफ 12th हाउस इज सीक्रेट एंड बेड रिलेशन एंड ऑल, एंड यू हैव exalted Jupiter in the 12th house, then you can have relationship with someone else's husband, और exalted Venus अगर 12 में है, 12th sign में होता है ना, तो ये हो सकता है कि you have relationship with someone else's spouse, but आप 12th house को कैसे इस्तेमाल करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 12th हाउस सीक्रेट रिलेशनशिप, अगर 12th हाउस बेड प्लेजर है, सीक्रेट रिलेशनशिप्स है एंड एवरीथिंग इज देयर, 12th हाउस लॉस भी है, हॉस्पिटल बिल भी है। आप जितना
छुप के मजा लोगे और आपको लगेगा कि किसी को पता नहीं, ऊपर भगवान नाम का कोई बैठा हुआ होता है। हु इज चित्रगुप्त जो है अपने रजिस्टर में सब कुछ लिख रहे हैं, और जो आप ये सब काम कर रहे हो आपका बुरा तो जरूर होगा, मेरे चाहने से नहीं, ऊपर वाले के चाहने से। और आपके बच्चे का अगर बुरा हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि तुम अच्छे से काम नहीं करते हो इसलिए तुम्हारा बुरा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए। मेरे ये वीडियोस, मैक्सिमम वीडियोस में मैं ये बात कहती हूँ इसलिए कि आपको यू शुड नो कि आपके बुरा करने के लिए ही आपके बच्चे का खराब हो रहा है, और आप इस जन्म में तो भुगतोगे, आपके बच्चे भुगत रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ मरने के समय में भुगतते हैं, क्योंकि उनको गलती का एहसास तब होता है। अच्छा जुपिटर है तो आपको गलती का, आपको पता है कौन सा चीज खराब है, मॉरल कैरेक्टर बहुत हाई होता है। एंड एक्सालेट जुपिटर आई हैव सीन इन डेबिलिटेटेड का तीनों नक्षत्र बता दिया। एक्सालेट जुपिटर आई हैव सीन इन पुनर्वसु, लाइक श्री राम का कहानी आप ऑल ऑफ यू नो, सो वो स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। जुपिटर इन पुष्या, जुपिटर मून इन पुष्या, आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट दे विल डिस्ट्रीब्यूट फूड, दे आर फॉन्ड ऑफ फूड। खाने को बेइज्जत कभी मत करना, क्योंकि खाने से ही आपका शरीर, आपका कैरेक्टर सब आपके खाने से बनता है। जो इंसान मैक्सिमम समय, जो सर्वेंट बाकी किसी भी काम के लिए रखो, लेकिन खाना पकाने के लिए जो सर्वेंट रखते हैं वो आपका खुद का कब्र, खुद के पूरे फैमिली का कब्र खुद खोदते हैं। जो स्पाइसी टेस्टी बनाने के लिए जो एकदम तेल मसाला खूब डाल के बनाते हैं और ऐसे ही बनाए हैं, वो भी आप अपना कब्र खुद खोद के रखते हैं। जुपिटर बहुत अच्छा होने से ऐसा कोई नहीं करेगा कि तेल डाल डाल के खाना बना रहे हैं। सो पुष्य में अगर जुपिटर है, पुष्य में मून है, पुष्य में जुपिटर मून बोथ है, दे आर फॉन्ड ऑफ कुकिंग, इफ नॉट कुकिंग दे आर फॉन्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड और सेलिंग फूड। मैं कम से कम 25 ऐसे कुक देखी हूँ जिनका जुपिटर मून पुष्य में है। आइदर जुपिटर पुष्य में है, नहीं तो मून पुष्य में है, नहीं तो इवन पुष्य में सैटर्न है, नहीं तो पुष्य में जुपिटर मून बोथ है, मून सैटर्न है, जुपिटर सैटर्न है। दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन मैंने देखा है कुक का। तो अगर आप धनिष्ठा का देख लोगे, धनिष्ठा में कोई है, दैट पर्सन is a banker, he is in economics and all those, they are very good in money management, and you will see exalted Jupiter in Pushya, जो दिन भर खाने में दाल चावल का दाग लगा हुआ है, दिन भर खाने में कपड़ों में दाल चावल का दाग है, और पकोड़े का, बेसन का और आटे का, ये सब का दाग लगा हुआ है। हो सकता है वो पका के, हो सकता है दैट पर्सन इज रेस्क्यूअर, कमा नहीं रहे हैं, वो लोगों से भीख मांग रहे हैं, नहीं तो खुद कमा के और खाना पका के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उनका जुपिटर पुष्य में है, जुपिटर ऊंचा है। इसीलिए आपका दिल कितना बड़ा है वो आपका जुपिटर दिखाता है, पैसा कितना बड़ा है वो नहीं दिखाता। एंड आफ्टर दैट अश्लेषा, अबाउट अश्लेषा आई वांट टू वार्न पीपल, क्योंकि अश्लेषा ऐसा नक्षत्र है, इफ योर जुपिटर और एनी प्लैनेट इज इन अश्लेषा, if you do chakra meditation it's very good, that is the most difficult kind of meditation, साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। अगर आप करोगे तो आप खुद के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, या आपके साथ जो नेगेटिव कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको आप क्लीन कर पाओगे। एंड जुपिटर नहीं, अबाउट मून इन अश्लेषा, दे आर वेरी क्लिंगी टाइप। एनी प्लैनेट इन अश्लेषा, वो जिनसे प्यार करते हैं उनको दबा ही देंगे, उनका गला दबा देंगे। ऐसा यू हैव टू लव एंड लाइक ओनली मी, लाइक तुम सिर्फ मेरी ही तरफ देखते रहो, इस टाइप का। तुम्हें जॉब करने का दिया, तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आई हैड अ स्टूडेंट, ऑलमोस्ट फर्स्ट 10 स्टूडेंट में एक थी, हु हैड 3 प्लैनेट्स इन अश्लेषा। वो मुझे दूसरा स्टूडेंट रखने ही नहीं देती थी। शी यूज टू डिस्करेज मी ऑलवेज, मेरा इनकम कम हो और मैं उसके भीख में रहूं, इस टाइप का। शी इज हाफ माई एजुकेटेड, बट अश्लेषा में मून, या शी वॉज हैविंग आई थिंक मार्स डेबिलिटेटेड, जुपिटर एक्साल्टेड एंड समथिंग एल्स ऑल्सो, 3 प्लैनेट्स इन अश्लेषा आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो उसका नेचर ऐसा था कि क्योंकि डेबिलिटेटेड मार्स अश्लेषा में डेबिलिटेटेड मार्स, जितने लोगों को मैंने देखा है, they are so manipulative, you cannot imagine। वो स्टोरीज बनाएंगे, झूठ मूठ का स्टोरी बनाएंगे, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं ठीक हूं और पूरा दुनिया खराब है।
दे आर एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव. उनके साथ आप जितना डिस्टेंस रख सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट अश्लेषा. अश्लेषा में जुपिटर मेडिटेटिव, गुड, दे कैन बी इन मेडिसिन. ओके, क्योंकि अश्लेषा इज अबाउट मेडिसिन. बट अश्लेषा में अगर मार्स है किसी का डेबिलिटेटेड, दे आर मैनिपुलेटिव. जो भी वो करते हैं, खाना भी पकाना पसंद करेंगे तो नॉनवेज ही ज़्यादा खाना पकाना पसंद करेंगे, क्योंकि डेबिलिटेटेड मार्स इज अबाउट नॉनवेज. जिनका मार्स एफ्लिक्टेड है, राहु के साथ है, आप देखोगे इस टाइप के लोग ज़्यादा नॉनवेज में होते हैं. ओके, सो आई थिंक आई कुड एक्सप्लेन कि पूरा दुनिया सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं चलता है, ब्लेसिंग्स के ऊपर भी चलता है एंड हैप्पीनेस के ऊपर भी चलता है. यही चेहरा अगर मैं चेहरा लंबा बना लूँ तो आई विल नॉट लुक गुड. इट इज़ नॉट अबाउट योर क्लोथ्स. It is not about the price of the clothes, price of ornament, price of house, car, nothing. जब आप happy दिखते हो, people gets attracted towards you, because and people want to continue staying with you. जब आप गलत नहीं करते हो तो आपका वाइब्स ऐसा होता है कि आपके पास भी जो आएगा, आसपास में रहेगा, उसका बीमारी, उसका ट्रबल्स अपने आप ठीक होगा. This is about exaltation. Bye. Have a nice time.